आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आम इंतखाबात 2019 से ठीक पहले ताबड़तोड़ छापेमारी से नाराज चंद्रबाबू नायडू धरने पर बैठ गए हैं। टीडीपी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नायडू ने सीधे पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत लगातार अपोजिशन लीडरान को जांच एजेंसीज के सहारे डराने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर उन्होंने सरकारी अफसरान को भी खबरदार किया। नायडू ने कहा कि सरकारें आती जाती हैं, लेकिन वो सही काम करें। इस मौके पर उन्होंने गैर जरूरी कार्रवाई करने वालों को भारी कीमत चुकाने की धमकी तक दे डाली। He is conducting raids on Telugu Desam party leaders on the instructions of Narendra Modi, Prime Minister. They don't have right. Once elections are announced, everything has to be conducted under the guidance of Election Commission. They have violated. This is very clear indication. This is violation of fundamental right and also election spirit and also principles of our democracy. So we are very clear. I am warning Prime Minister. This is very bad. This is unwarranted. If you do like this, you have to pay heavy price in future. Under the same time, I am requesting nation to acknowledge all these things, what Narendra Modi is doing. For the last so many days, we are fighting to save democracy, to save India, protect democratic institutions. This is a glaring example of Narendra Modi. Who are you? You are outgoing Chief Prime Minister. What is the right you are having? Even officers I am requesting, don't listen to him. If you listen, you will also face serious consequences in the future. So what I am appealing everybody, follow democratic norms, follow rule of the law, and also don't harass our people. There is election commission, they will conduct elections. Don't behave high-handedly. I am warning IT department also. If you do like that, you are also going to pay, individuals or organization, you are going to pay heavy price for all whatever committing crimes. आंध्र प्रदेश के सीएम के बाद कर्नाटक सीएम एचडी कुमारस्वामी ने भी सरकारी एजेंसीज के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि इंतखाबी तशहीर में आते जाते उनके काफिले की एक दिन में 14 से 45 बार तक तलाशी ले ली जाती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और मरकजी जांच एजेंसियां बीजेपी लीडर बीएस येदियुरप्पा के इशारे पर काम कर रही हैं, जो मुल्क की जमहूरियत के लिए खतरा है। हालांकि बीजेपी से कानून इंतजामिया का मामला बता रही है। बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आजाद है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अमन के साथ इंतखाबी अमल को पूरा कराए। ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ವಾಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ನ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು, ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ? ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ CBI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆನ್ನೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ 15 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ 1.5 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ. You said the government will fall after Lok Sabha elections. That's what people are telling. Let us wait and see. Will you be the CM again? I can't say anything. It all depends upon Congress leaders, MLA's decision. We must wait and see, madam. I can't say anything now. We are going to win minimum 22 Lok Sabhas. So just one question, sir. Sir, Chief Minister H.D. Kumaraswamy has said that the Election Commission is searching him 14 times a day. Because yes, 20% commission is taking everywhere. And you know very well, just now I told you, more than 1,350 crores before starting work, without completing the work, they have given advance. What does that mean? In that way, they are searching everywhere, and one by one, all loopholes coming out.
केरल के वायनाड से पर्चा नामजदगी के काफिले में शामिल हरे झंडे को लेकर बीजेपी अब सियासत कर रही है। कांग्रेस सदर के काफिले में दिख रहे इस परचम को कई बीजेपी लीडरान पाकिस्तानी बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी के इस इल्जाम पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एतराज जताया है। पार्टी तर्जुमान खुर्रम अनीस उमर का कहना है कि रियासत में कांग्रेस के साथ उनका 30 साल से इत्तेहाद चल रहा है और आज भी पार्टी के पास 18 एमएलएज और 3 एमपीज मौजूद हैं। ऐसे में किसी हिंदुस्तानी सियासी जमात के परचम को पाकिस्तानी बताने की सियासत हो रही है, जो गलत ही नहीं बल्कि आईन के मुखालिफ भी है। पार्टी तर्जुमान खुर्रम से बात की हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया तो लगातार सुर्खियां भी इस सीट को लेकर अब बनती नजर आ रही है। एक मामला और सुर्खियां बटोर रहा है कि राहुल गांधी जब पर्चा दाखिल कर रहे थे उस वक्त हरे झंडे लहराए गए और वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के थे। योगी आदित्यनाथ ने उस पर निशाना साध दिया। हमारे साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी तर्जुमान यानी कि नेशनल स्पोक पर्सन खुर्रम साहब मौजूद है, खुर्रम उमर। खुर्रम साहब, मुझे बताइए कि कांग्रेस के साथ आपका जो समझौता है या गठबंधन है वो कब से है? पहली बार ही इस तरह से निशाना क्यों साधा जा रहा है? कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन जहां तक केरला का सवाल है 30 साल से ज्यादा से है और हम कांग्रेस का जो गठबंधन केरला में है पर्टिकुलरली जिसको यूडीएफ कहते हैं, हम उसका हिस्सा हमेशा से रहे हैं, पिछले 30 साल से ज्यादा से। तो यानी कि कांग्रेस के झंडे और आपके झंडे साथ साथ 30 सालों से रहे हैं? हाँ, बिल्कुल रहे हैं। ये झंडा और हमारा सिंबल लैडर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और हमने इसके लिए इलेक्शन कमीशन में आज रिप्रेजेंटेशन मांगा है। हम एक शिकायत भी करने जा रहे हैं। ये बताइए मुझे कि योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुस्लिम लीग का वायरस घुस गया है। मुस्लिम लीग को लेकर निशाना साधा जा रहा है क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी जिन्ना वाली, वो हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थी। जब आपकी पार्टी को इस तरह की चीजों से जोड़ा जाता है तो क्या आप लोगों के बीच कहते हैं, क्या महसूस हो? योगी आदित्यनाथ जी को अपनी ही पार्टी के श्री जसवंत सिंह, अपनी ही पार्टी के श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के बयानात को सुनना चाहिए, जिन्होंने मुस्लिम लीग को जिम्मेदार नहीं ठहराया और दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। पहली बात, जिन लोगों को तारीख नहीं मालूम और जो लोग सिर्फ भड़काने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं कि हम वायरस हैं, हाँ हम वायरस हैं, हम वो वायरस हैं जो बीजेपी को हरवा के छोड़ेंगे। ये वायरस अब आ गया है, योगी जी होशियार हो जाए। आज वायनाड में राहुल गांधी जी ने जाकर अगर नॉमिनेशन फाइल किया है तो इसकी वजह से अटेंशन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा बातें हो रही हैं, वरना ये हमेशा से थी और हमेशा तक कायम रहेगी। जब तक ये अभी आपके 3 सांसद है मौजूदा, अभी हमारे विधायक, हमारे 3 सांसद हैं, 2 लोकसभा में, 1 राज्यसभा में और तकरीबन 19 विधायक हैं, 18 केरला में, 1 तमिलनाडु में और सैकड़ों की तादाद में कॉरपोरेटर पंचायत में और दूसरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र में मौजूद हैं। कभी पहले इस तरह की कोई परेशानी हुई कि भाई आपका जो झंडा है वो चांद वाला है तो हरा है तो पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है? इस तरह की परेशानी अक्सर होती रहती है, खासतौर से यूपी जैसे स्टेट में, जहां बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते रहते हैं कि ये पाकिस्तानी झंडा है, ये आपने क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर पे क्यों लगा रहे हैं, अपने गाड़ी पे क्यों लगा रहे हैं। पाकिस्तान झंडा और मुस्लिम लीग के झंडे में बहुत फर्क है, उस फर्क को समझने की कोशिश करें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे कौमी तर्जुमान खुर्रम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। बड़ी बात यही है कि जो इन्होंने कही कि 30 साल से कांग्रेस के साथ वहां पर इत्तेहाद है और यूपीए सरकार का भी हिस्सा रहे हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इनके मंत्री भी रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल किया है और बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार सियासत कर रही है, तो उसकी वजह से फिर से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और उसका झंडा सुर्खियों में आ गया है। कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। कर्नाटक की 28 पार्लिमानी सीटों में एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर रोशन बेग ने रियासती कयादत पर मुस्लिम मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया है। उनका तो यहां तक कहना है कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो रियासत से मुसलमानों की कयादत खत्म की कर देना चाहते हैं। अगले कदम के सवाल पर उन्होंने कहा कि रियासत का मुसलमान हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन पार्टी ने अगर रवैया नहीं बदला तो कोई बड़ा
फैसला लेना पड़ेगा। इन्हीं मौजूआत पर रोशन बेग से बात की हमारे बेंगलुरु नुमाइंदे शाहिद काजी ने। पिछले साल असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया और उसी के नतीजे में आज कर्नाटक में मिलीजुली सरकार बनी हुई है। लेकिन कर्नाटक में लगातार मुसलमानों के साथ नाइंसाफियों का दौर चलता रहा है। या इस सिलसिले में बात करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर लीडर रोशन बेग हमारे साथ हैं। रोशन बेग साहब, बताएं किस तरह से कर्नाटक में जो आज का जो मंजर है सॉफ्ट हिंदुत्व कहीं ना कहीं मुसलमानों को जो है तकलीफ पहुंचा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। तारीख गवाह है कि कांग्रेस को साथ हमेशा मुसलमान रहे हैं। सिर्फ बाबरी मस्जिद का जो सानेहा हुआ, कांग्रेस की हुकूमत रहते हुए बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तब मुसलमान कांग्रेस से नाराज़ हुए और कांग्रेस को वोट नहीं दिया। उसके बाद फिर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस के करीब आते गए। पिछले बार यहाँ रियासती इंतखाबात में मुसलमानों ने 2008 के इलेक्शन में, असेंबली इंतखाबात में, 2013 के इंतखाबात में खुलकर कांग्रेस का साथ दिया। इसके बावजूद कांग्रेस सिर्फ 80 सीटों पे आके अटक गई। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मुसलमान कांग्रेस का साथ खुलकर नहीं देते तो कांग्रेस 60 सीटों पे रह जाती कर्नाटक। और उसके बावजूद अब जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है तो इस तरीके का रवैया कि सिर्फ एक सीट देना, ये इससे हमको बड़ा अफसोस हुआ है। हमें ठेस पहुंचा है। ये ठेस सिर्फ रोशन बेग को ही नहीं पहुंचा है बल्कि रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा है। आप एक और सीट दे दे तो क्या हो जाता? कैंडिडेट हार जाता? यही होता ना। आपके 28 के 28 सीटें जीत जाएंगे आप। मुसलमान का जब नाम आता है तो अरे वो सीट हार जाएगा। क्या बेवकूफ़ी है। आप बिदर में मुसलमान को सीट दे सकते थे, बिदर में क्यों नहीं दिया? क्या मुस्लिम लीडरान की तरफ से क्या सही से प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था? क्या कितने सीटों के मुतालबा था? अरे कितने बार रिप्रेजेंटेशन करें, जाके इन्हें पैर पड़ें क्या? इनसे इनको राइटिंग में चिट्ठी दी गई थी, मिलके इनसे कहा गया था, मुलाकात करके इनसे कहा गया था कि भाई सीटें दें। अब ये सिर्फ कैडबरी चॉकलेट देना चाहते हैं। नहीं, आपको राज्यसभा दे देंगे, MLC दे देंगे। किसको ये कैडबरी चॉकलेट दे रहे हैं आप रख लीजिए। देना हो तो आप सीटें देना था, 3 सीटें देना था। ठीक है, 3 नहीं तो 2 तो सीट देते। कुर्बा कौम जो पिछली बार 3 तरह वोटिंग की, उनको आप 3 सीट देते हैं। दूसरे कौमों को आप कितनी कितनी सीट देते हैं। जो कौम 100% आपके साथ रही, आप 2 सीट नहीं दे सकते, सिर्फ 1 सीट पे। ये हमें निहायत अफसोस। क्या ये मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की साजिश है, चाहे वो कांग्रेस या कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप इसमें कमज़ोर पड़ रही? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ कांग्रेस में कुछ ऐसे अनासर आ गए हैं जो कांग्रेस में मुसलमान लीडरशिप को सप्रेस करने उनकी यही कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है। एक तो मुस्लिम लीडरशिप को सप्रेस करो, और कभी कभी मुझे लगता है कि इनका कहीं ये तो इरादा नहीं है कि मुसलमान मुक्त कांग्रेस। मुझे इस पे शुबा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जो है टिकट के उम्मीदवार थे, टिकट नहीं मिलने की वजह से आप भी बयान दे? नहीं, टिकट नहीं मिलना अलग बात है। अगर मुझे टिकट भी मिलता तो सिर्फ मुझे अकेले को टिकट देते तो तभी भी मैं ये कहता। तो दूसरी सीट तो देते हैं। 1 सीट देके आपने तौहीन की है। 1 सीट सिर्फ वो रोशन बेग को ही देते तो तभी भी नाराज़ होता। रोशन बेग सिर्फ 1 सीट नहीं है। अगर 2 सीट मिनिमम 2 सीट देते तो ठीक है, रियासत में मुसलमान अवाम जो है थोड़ा सा मुतमईन रहती। तो 1 सीट देना ये अच्छी बात नहीं। इसे किसे जिम्मेदारी देना, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? ये मैं यहाँ का स्टेट का कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ, यहाँ के CLP लीडर को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ, यहाँ के AICC जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ। इससे पहले भी जो है आप सिद्धरामैया जो है इस वक्त जो है काफ़ी पावरफुल लीडर माने जाते हैं, आप उनके करीब ही रहे हैं। क्या सिद्धरामैया मुसलमानों को उनका हक दिलाने में नाकाम साबित हुए? बिल्कुल टोटल फेल्यूर है, बिल्कुल नाकाम साबित हुए। तो आने वाले दिनों में मुसलमानों को क्या कदम उठाना चाहिए कर्नाटक के मामले में? अब आगे देखा जाएगा, जैसे जैसे सूरत हाल होगी। इस तरह मुसलमान इतना बेवकूफ़ भी नहीं है जो चुप बैठे। जब वक्त आएगा तो एक्ट करेगा।
कुछ कांग्रेस लीडरान का कहना है कि मुसलमानों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? अरे ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये बगैर अब कुछ लोगों में ये रवैया है कि अरे मुसलमान कहाँ जाएगा भाई, कांग्रेस ही तो में देगा ना, कांग्रेस छोड़ के कहाँ जाएगा। अरे जब ज़रूरत पड़ेगी तो जहाँ भी जाएगा जाएगा, कोई बॉन्डेड लेबर की तरह नहीं रहेगा। अच्छा, मुसलमानों के लिए आखिरी आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? हिकमत के साथ रहें, हिकमत के साथ वोटिंग करें और हिम्मत के साथ रहें। शुक्रिया। रोशन बेग साहब का कहना है कि मुसलमान पूरी तरह से नाराज़ हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की टिकट का मामला हो और दीगर कई मामलात में जो है मुसलमानों को कांग्रेस में साइडलाइन किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बड़े लीडरान जो है इस बात का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से ये नाराज़गी है, आने वाले दिनों में जो इंतखाबात हो रहे हैं इसके नताइज पर कितना असर डाल सकते हैं, इसको देखना होगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, जी सलाम। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मेलबर्न में वाईएसआरसीपी कारकुनान पर जमकर लाठीचार्ज किया गया। पार्टी चीफ जगनमोहन रेड्डी के काफिले के पीछे चल रहे इसी दौरान किसी बात को लेकर सीआईएसएफ जवानों से पहले बहस हुई और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि जवानों को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें एक खातून समेत कई लोग जख्मी हो गए। फिलहाल इस लाठीचार्ज की वजूहात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इंतखाबी माहौल में इस पर सियासत गर्मा